کو ہدایت عطا فرما دے، اللہ ابو جہل کو صراط مستقیم عطا فرما دے۔ جب میرے حضور مکہ کی کسی گلی میں دین کی تبلیغ کرتے تھے تو ان کا چچا ابو لہب حضور کے پیچھے پیچھے ڈھول بجاتا تھا اور کہتا تھا لوگوں یہ میرا بھتیجا محمد ہے، اس کی بات نہ سننا، اس کی بات پہ کان مت رکھنا، یہ جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے۔ مگر میرے حضور کا کردار دیکھو، نبی دعا کرتے تھے بولا یہ ابو لہب ہے، یہ جاہل ہے، اسے میرا مرتبہ پتا نہیں ہے، اللہ اسے ہدایت عطا فرما دے، اللہ اسے بھلائی عطا فرما دے۔ اللہ کی قسم جیسا میرے پیغمبر کا کردار ہے ایسا کبھی کسی کا کردار تھا ہی نہیں، کیونکہ کردار کہاں سے ہوتا؟ اللہ نے اس کائنات میں سب سے بلند کسی کو بنایا ہے تو اس کا نام جناب محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ مکہ والے حضور پہ دھول اڑاتے، مکہ والے حضور کو دیوانہ کہتے۔ اللہ اکبر، جانتے ہو مکہ والوں کا حضور پہ ظلم کا عالم کیا تھا؟ ایک دن میرے حضور صحن حرم میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے تھے۔ اللہ کی قسم مسلمانوں، مکہ کے کفار، مکہ کے سردار وہیں کعبے کے صحن میں بیٹھے تھے۔ اللہ اللہ، ایک ظالم مشرک کافر اٹھا جس کا نام عقبہ ابن ابی معیط تھا۔ اٹھنے کے بعد اس نے اپنی چادر کو گلے سے اتارا اور اپنی چادر سے حضور کے گلے میں پھندا ڈال دیا۔ اللہ اللہ مسلمانوں، تاریخ اسلام کہتی ہے اس نے اتنی زور سے اس چادر کو کھینچا کہ حضور کی آنکھیں ابل پڑی، حضور کی سانسیں اٹکنے لگی، لگتا تھا کہ جیسے حضور پردہ فرما جائیں گے۔ اللہ کی قسم میرے حضور کے گردن میں چادر ڈال دی گئی، پھندا ڈال دیا گیا، حضور کی آنکھیں ابل پڑی، لگتا تھا حضور انتقال کر جائیں گے۔ اللہ اللہ، میرے آقا کو کوئی بچانے والا نہیں تھا، کوئی کہنے والا نہیں تھا تم ظلم کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو۔ ایسے وقت میں جناب ابوبکر صدیق نے عقبہ کو آنے کے بعد دھکا دیا اور آپ نے فرمایا ظالمو، تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے اللہ ایک ہے، تم اس پہ ظلم کر رہے ہو جو کہتا ہے کہ اللہ شریف کو سجدہ کرو، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرو۔ ابوبکر صدیق نے عقبہ کو دھکا دیا، عقبہ نے پلٹ کر ابوبکر پر حملہ کر دیا۔ اللہ اکبر، خوب حضرت ابوبکر کو ضرور کیا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں ابوبکر جب عقبہ ہٹ گیا تھا تو تمہیں بلندے کی ضرورت کیا تھی؟ ابوبکر فرماتے ہیں آقا یہ جان تمہارے قدموں پہ قربان ہے، یہ سانس تمہارے قدموں پہ قربان ہے، تمہارے قدموں پہ قربان ہے۔ ابوبکر جان دے دے گا مگر زمانے سے کہے گا جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، نہ ہم سے ہو سکے گا لوگوں نبی بجا ہو جلال۔ مکہ والے بولے محمد اب بھی کرو گے عبادت کعبہ میں؟ یہ ہمارے بتوں کا گھر ہے۔ نبی مسکرا کر فرماتے تم سے دنیا ڈر جائے گی مگر محمد نہیں ڈرے گا۔ یہ شان ہے ہمارے سرکار کی۔ آقا فرماتے میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ پھر صبح ہوئی، پھر آقا کریم سے ہمیں حرم میں پہنچ گئے۔ آقا نے نیت باندھ لی، جب میرے حضور اللہ اکبر سجدے میں گئے، آقا رب کو پکار رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ جانتے ہو ابو جہل ظالم نے کہا تھا ہے مکہ میں کوئی ایسا جو کہ محمد کی پشت پر اللہ اکبر اونٹ کی اوجڑی رکھ دے، جو بھی اوجڑی رکھے گا تو میں اس کو اپنی جانب سے دعوت دوں گا۔ اللہ اکبر، یہی ظالم اٹھا۔ اٹھنے کے بعد عقبہ نے اونٹ کی اوجڑی اٹھائی۔ لوگوں سوچو تو صحیح، اونٹ کی اوجڑی اللہ اکبر کتنی بدبودار ہوتی ہے، اونٹ کی اوجڑی میں کتنی بدبو آتی ہے، مگر عقبہ نے یہ بھی نہ سوچا کہ جس کی پشت پہ اوجڑی رکھ رہا ہے وہ سید الانبیاء ہے، وہ جدھر کو جاتے ہیں گلیاں خوشبو سے مہک جاتی ہے، وہ مسکرا کر دیکھ لیتے ہیں تو لوگوں کو صحابی بنا دیتے ہیں۔ حضور کی پشت پہ اس نے سڑی ہوئی اونٹ کی اوجڑی رکھ دی۔ اللہ اللہ، اتنا وزن تھا اوجڑی میں، حضور کا شانہ چھپ گیا، حضور کو تکلیف ہو رہی تھی۔ آقا اٹھنا چاہتے تھے مگر اٹھا نہیں جاتا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی عمر اس وقت تھوڑی سی تھی، آپ کمسنی کے عالم میں تھی۔ جب آپ نے اپنے بابا کے اللہ اکبر پشت پر اوجڑی کو دیکھا تو فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور نبی کی بیٹی نے کہا تھا اے مکہ کے ظالموں، کیا تمہیں معلوم ہے تم کسے ستا رہے ہو؟ میں نے دیکھا ہے جب تمام دنیا سوتی ہے تو میرے بابا محمد تمہارے لیے ایمان کی دعائیں کرتے ہیں، تمہارے لیے صراط مستقیم کی دعائیں کرتے ہیں۔ اے ظالموں، تمہیں بالکل رحم نہیں آتا۔ یہ عبد المطلب کا پوتا ہے، پوتا، یہ عبداللہ کا
बेटा। तो अबू जहल ने हंसकर कहा था फातिमा बचा ले अपने बाप को, हटा दे ओढ़नी को। हजरत खातून जन्नत ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से ओढ़नी को हटाया, मेरे हुजूर ने अपने सर को उठाया। फातिमा हुजूर के सीने से लग गई, कहने लगी बाबा ये जालिम कब तक पत्थर मारते रहेंगे, ये जालिम कब तक सताते रहेंगे, क्या इनके जुल्म की कोई इंतहा नहीं है, क्या इनके जुल्म का कोई बच नहीं है। मेरे सरकार का दिल दुखा और आका करीम ने आसमान की जानिब देखा। नबी फरमाते हैं अल्लाहुम्मा अलैका बि कुरैश, अल्लाह कुरैश वाले को अपनी गिरफ्त में ले ले। नबी फरमाते मौला अबू जहल को अपनी गिरफ्त में ले ले, उमैया को अपनी गिरफ्त में ले ले, शैबा को अपनी गिरफ्त में ले ले। अब्दुल्लाह इसने मसूद फरमाते हैं मैंने देखा बदर के मैदान में अबू जहल का नाश अलग पड़ा था, उमैया का नाश अलग पड़ा था, शैबा का नाश अलग पड़ा था। बड़ी शिद्दत के साथ इन्हें बदर के गड्ढे में डाला जा रहा था और बदर में आवाज आ रही थी अबू जहल तुम मिट गया, आमना का नाम जिंदा है, उमैया तुम मिट गया, आमना का नाम जिंदा है, शैबा तुम मिट गया, आमना का नाम जिंदा है। मैं क्यों न बोलूं मिट जाए मिटते हैं, मिट जाएंगे आना तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी, चल जा। मक्का वाले बोले मोहम्मद अब भी आएगा। नबी फरमाते जान दे दूंगा मगर तबलीग इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। जोर से बोले तबलीग इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह हू अकबर मोमिनो, सिर्फ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जोर नहीं था, तवज्जो है, दिलों को संभाल कर बैठे। अब मेरे बयान का दूसरा जो शुरू हो रहा है, अल्लाह हू अकबर, अल्लाह अल्लाह। मक्का के कुफार चाहते तो मुसलमानों को एक पल में खत्म कर देते, मगर वो कहते थे ये मर जाएंगे तो किसे सताएंगे, मजा कैसे आएगा, बिलाल मर जाएगा तो कोड़े किसके मारेंगे। अल्लाह अकबर। नबी के एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत खब्बाब इब्न अरत है। फरमाते हैं एक दिन मेरे आका ने मुझसे पूछा खब्बाब मैंने सुना है कि तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है। खब्बाब कहने लगे हाँ मैं झूठ बोल सकता था मगर मैं सच्चे नबी का सच्चा उम्मती हूँ। पता चला जो झूठ बोलते हैं वो सच्चे उम्मती नहीं है, जो शराब पीते हैं वो सच्चे उम्मती नहीं है, जो जुआ खेलते हैं वो सच्चे उम्मती नहीं है। खब्बाब कहते हाँ हाँ मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया है, हाँ हाँ मैं कुफ्र को छोड़कर नबी की नबुव्वत के उजालों में आ गया हूँ। हज़रत खब्बाब फरमाते इतना सुनना था, उसके घर में अल्लाह अकबर कोयले जल रहे थे, इसने मेरी कमीज को उतारा और चलते हुए कोयले पर मुझे लिटा दिया। जयानपुर के मुसलमानों सोचो तो सही, जब खब्बाब कोयलों पर लेते होंगे तो तकलीफ का आलम क्या होगा, शिद्दत का आलम क्या होगा। अरे हमें मालूम क्या है इस इस्लाम को बचाने के लिए सहाबा ने कितनी तकलीफों को सहा है, सहाबा को कितना दर्द दिया गया है, सहाबा को कितना मारा पीटा गया है। हज़रत खब्बाब फरमाते हैं जब मैं उठने को था मेरे मुंह से चीख निकली, एक जालिम मेरे सीने पर पैर रखकर खड़ा हो गया। मेरी पुष्ट से निकलने वाली पीठ की वजह से, रतूबत की वजह से जितने कोयले थे बुझ गए, मैं चलते चलते बेहोश हो गया मगर किसी जालिम को मुझ पर रहम नहीं आया। जब हजरत उमर का दौर आया उन्होंने अपनी पुष्ट हजरत उमर को दिखाई तो उमर कहते खब्बाब तेरी अजमत को सलाम, खब्बाब तेरे दिलदारी को सलाम, खब्बाब तेरे मर्तबे को सलाम, तूने अपनी पुष्ट को जला के अल्लाह उसके रसूल को राजी कर दिया है। पता चला मुसलमानों जो जितना इसके नबी में इम्तिहान देता है अल्लाह उसको इतना ही बुलंद फरमा देता है। भाई कोई इम्तिहान देने वाला हो तो सही। आज तो सब नारों के आशिक हैं, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। आमद रसूल है तो नबी को कोई तोहफा तो मिले, या रसूल अल्लाह सिर्फ जश्न नहीं मनाएंगे, हमारी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा ये है कि 5 वक्त के नमाजी बन जाएंगे। हमारी तरफ से तोहफा ये है कि शराब नहीं पिएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, गुनाहों को छोड़ देंगे। अल्लाह अकबर। मक्का वालों के जुल्म आगे सुनो। अल्लाह अल्लाह। इसी मक्का में एक सरदार था जिसका नाम उमैया बिन खलफ था। मचल कर बोले जोर से क्या था? उमैया बिन खलफ था। इस उमैया के पास एक बिलाल था जो सुन्नियों के सीने की जान है और जमाना उसको बिलाल हबशी के नाम से जानता है। अल्लाह अकबर। जानते हो
ہے حضرت بلال پر ظلم کا عالم کیا تھا؟ یہ مکہ والے حضرت بلال کی گردن میں رسی ڈال کر مکہ کے چوراہوں پر گھسیٹا کرتے تھے. حضرت بلال کی پشت پر لاٹھیاں برسائی جاتی تھی. حضرت بلال کو مارا پیٹا جاتا تھا. ایک دن امیہ نے حضرت بلال کو گھر سے نکالا. گھر سے نکالنے کے بعد کہنے لگا پتہ بلال کیا کہتا ہے محمد کے بارے میں؟ تو حضرت بلال کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. امیہ نے کہا ہے نوجوانوں بلال پر ظلم کیا جائے. اللہ اکبر. چاروں جانب سے پتھروں کی برسات ہو گئی. حضرت بلال کے پتھر مارے جانے لگے. اتنے پتھر لگے بلال کا چہرہ خون سے لہو لہان ہو گیا. بلال کا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا. حضرت بلال کو عرب کے صحرا میں لے جایا گیا. حضرت عرب کا صحرا دوپہر میں تنور بن جاتا ہے. حضرت بلال کو زمین پر بٹھایا گیا. اتنے کوڑے مارے گئے اتنے کوڑے مارے گئے کہ بلال کی باہوں سے خون رسنے لگا. بلال کی پشت سے خون رسنے لگا. حضرت بلال کو اللہ اکبر صحرا کے ریت پر لٹا دیا گیا. جب صحرا کے ریت نے بلال کی پشت کو کاٹا بلال کی روح تڑپ اٹھی. بلال چیخنا چاہتے تھے بلال رونا چاہتے تھے مگر نبی کا عشق بولا بلال رونا نہیں ہے. یہی تو اس کے مصطفیٰ کا امتحان ہے. بلال رونا نہیں ہے. یہی تو اللہ کی محبت کا امتحان ہے. مکہ والے کہتے ہیں بلال بتا کیا کہتا ہے؟ بلال کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت عشق محبت سرکار کی آمد سرکار کی آمد. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. حضرات آپ تاریخ اسلام پڑھیں تو صحیح. بلال سے کہا گیا بلال کیا کہتے ہو؟ بلال کہنے لگے جان دے دوں گا مگر مصطفیٰ کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا. اس کے بعد ان ظالموں نے حضرت بلال کے پیروں پر پیر رکھ لیے. حضرت بلال کے ہاتھوں پر پیر رکھ لیے. اللہ اللہ دو نوجوان گولے گئے. ایک وزنی پتھر کو اٹھا کر لایا گیا اور حضرت بلال کے سینے پر رکھ دیا گیا. پتھر اتنا بھاری تھا پتھر اتنا ثقیل تھا کہ بلال کی آنکھیں ابل پڑی. بلال کی سانسیں رکنے لگی. بلال کا سانس لینا مشکل ہو گیا. کفار مکہ کو لگا بلال مر گیا ہے بلال ہلاک ہو گیا ہے. سینے سے پتھر کو ہٹا دیا گیا. جب چند منٹ گزرے تو بلال کی سانسوں میں سانس آئی. بلال کی آنکھیں اپنی جگہ ثابت ہو گئی. امیہ کہنے لگا بلال بتا کیا تو محمد کا کلمہ پڑے گا؟ حضرت بلال نے یوں دیکھا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا امیہ تو سوچتا ہے بلال ڈر جائے گا؟ آج تیرا وقت ہے. کل بلال کا وقت آئے گا. آج تو حاکم ہے کل بلال کا وقت آئے گا. حضرت بلال نے کہا تھا امیہ ہاتھ تیرے ہے تو لے لے زبان تیری ہے کاٹ لے آنکھیں تیری ہے نکال لے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے مگر دل کا کیا کرے گا؟ دل تو میرے محمد رسول اللہ کو دل تو میرے آمنہ کے نام کو لے لیا ہے. میرا امام پکارتا ہے بریلی سے کروں تیرے نام پہ جا پتا بس جان کیا دو جہاں پتا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرے جہاں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت مولانا ثناء الحسن نقوی صاحب قبلہ مولانا ثناء الحسن نقوی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. مومنوں مصطفیٰ کی زندگی اتنی آسان نہیں جتنی ہم نے سوچ لی ہے. نبی نے اپنا خون جگر دے کر اسلام ہم تک پہنچایا. بلال کی زبان کو جلایا گیا. بلال بولے لا الہ الا اللہ. حضرت خباب کی پشت کو پگھلایا گیا. خباب بولے لا الہ الا اللہ. حضرت عثمان غنی کو چٹائی میں لپیٹ کر دھونی دی گئی. عثمان بولے لا الہ الا اللہ. مکہ والے سمجھ گئے لگتا ہے ہمارے ظلم سے یہ ماننے والے نہیں ہیں. ہم نے بلال کی زبان کو جلا دیا. ہم نے عمار بن یاسر کے والدین کو قتل کر دیا. ہم نے خباب کو کوئلوں پہ لٹا کر دیکھ لیا مگر یہ محمد کا کلمہ چھوڑ کے ہی نہیں ہے. چلو ان کے ساتھ سلح کر لی جائے. چلو ان کے ساتھ ایک بیٹھک کر لی جائے. چلو ان کے ساتھ ایک منچ ساجھا کر لیا جائے. اللہ اکبر. جان دو ایک دن مکہ کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا چلو پہلے ابو طالب کے پاس چلے اور ابو طالب سے جا کر کہیں اپنے بھتیجے کو سمجھا لے محمد ہمارے دین کو فرضی کہتا ہے. محمد ہمارے خداؤں کی توہین کرتا ہے. محمد ہمارے باپ داداؤں کو برا کہتا ہے. مکہ کے 40 سردار جمع ہوئے.
हुए और जमा होने के बाद जनाब अबू तालिब की बारगाह में आए। आने के बाद कहने लगे अबू तालिब अपने भतीजे को समझा लो, ये हमारे खुदाओं को फर्जी कहते हैं, हमारे दीन को बुरा भला कहते हैं, हमारे बाप दादा की मजम्मत करते रहते हैं, हम कब तक इनकी बदतमीजी को बर्दाश्त करेंगे? या तो मोहम्मद को समझा लो वरना हमारी तलवारें मैदान से निकलेंगी। अबू तालिब कहते हैं मेरे भतीजे के करीब से ना गुजर जाना, मेरे भतीजे से कुछ मत कहना, जब तक अबू तालिब जिंदा है कोई मोहम्मद का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कोई मोहम्मद का बाल भीगा नहीं कर सकता है। तो जानते हो मक्का के लोगों ने कहा था अबू तालिब अपनी साइड डिसाइड कर लो, तुम मोहम्मद की तरफ से हो या हमारी तरफ से हो। अगर तुम मोहम्मद की तरफ जाओगे तो याद रखो हम अपनी तलवारों को निकालेंगे, तुम्हारे बुढ़ापे का पास न करेंगे, तुम्हारी बुजुर्गी को फरामोश कर देंगे, हम मोहम्मद को भी कत्ल कर देंगे, हम तुम्हें भी कत्ल कर देंगे। जब अबू तालिब ने इतना सुना तो डर गए, घबरा गए, दिल पे लर्जा तारी हो गया, जिस्म कांपने लगा। अबू तालिब की आंखों में आंसू आ गए, सोचने लगे लगता है मेरे भतीजे के साथ कुछ बुरा हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, हमें मोहम्मद का दर्द कहाँ पता है, हमें मोहम्मद की तकलीफें कहाँ पता है, हमें मोहम्मद की परेशानियां कहाँ पता है। जब शाम को मेरे आका तशरीफ लाए तो अबू तालिब ने नजरें झुकाकर कहा बेटा मोहम्मद तुझे मालूम नहीं है, ए बेटे मोहम्मद इतना बोझ अपने चचा पर मत डाल कि तेरे चचा के पूरे काम में उस बोझ को उठा न सके। मेरे आका ने फरमाया चचा बताओ तो सही क्या हुआ है। अबू तालिब कहते हैं भतीजे तुझे मालूम है आज तक मक्का में किसी की हिम्मत नहीं है जो अबू तालिब के सामने आधी बात कह सके। आज तेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़ गया है, आज तेरी वजह से नजर झुक गई है, आज तेरी वजह से मुझे सुनना पड़ गया है। नबी फरमाते चचा बताओ तो सही क्या कहना चाहते हो। तो अबू तालिब कहते हैं भतीजे मक्का के सरदार आए थे, वो कह रहे थे पूछो मोहम्मद से अगर सरदारी चाहिए तो सरदार बनाएंगे, अगर पैसा चाहिए तो सोना चांदी देंगे, अगर किसी से निकाह करना हो तो सबसे ऊंचे खानदान में मक्का में मोहम्मद का निकाह करा देंगे। मगर मोहम्मद से कहो अपने दीन की तबलीग को रोक दे, अपनी जबान को लगाम दे, हमारे खुदाओं को बुरा भला कहना शुरू करे। अल्लाह की कसम मेरे पैगंबर के हर कदम पर अबू तालिब खड़े थे। जब नबी को जरूरत पड़ती थी अबू तालिब साथ मौजूद होते थे। मगर आज अबू तालिब के कदम लड़खड़ाने लगे, अबू तालिब के कदम लड़खड़ने लगे। जब मेरे सरकार ने देखा कि मेरे चचा भी मेरा साथ छोड़ रहे हैं, आका करीम की आंखों में आंसू आ गए थे। वो आंखें जिनके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं लौट के आने वाले, हुस्न तेरा ना देखा ना सुना, ऐसा कहते हैं अगले जमाने वाले। मेरे नबी ने रो कर कहा था ऐ मेरे चचा आप कहते हो इस्लाम की तबलीग छोड़ दो। अल्लाह अल्लाह हुजूर फरमाते हैं मेरे चचा मक्का के कुफार से कह दीजिए दुनिया की तमाम शैतानी ताकतें जमा हो जाए और मोहम्मद के सामने आ जाए, मोहम्मद फिर भी कहेगा तुम्हारे बुत झूठे हैं, तुम्हारा दीन झूठा है, तुम्हारे खुदा झूठे हैं। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं आप मक्का के कुफार से कह देना एक हाथ में सूरज रख दें दूसरे में चांद रख दें, मोहम्मद फिर भी कहेगा मक्का वालों के बुत झूठे हैं। ऐसा झूठों को सच्चा कैसे कह दूं, ऐसा फर्जी को असली कैसे कह दूं, ऐसा काफिर को मोमिन कैसे कह दूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं ऐ चचा मोहम्मद या तो इस्लाम को दुनिया के घर घर तक ले जाएगा या अल्लाह के दीन पे शहीद हो जाएगा। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत इसकी मोहब्बत जयपुर के सुन्नी जन्नती मुसलमान नारे तकबीर नारे रिसालत। जो है मचल कर बोले सुभान अल्लाह, एक बार और बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह में आ रही है, आगे बढ़ाऊं थोड़ी सी गुफ्तगू। नबी ने फरमाया जान दे दूंगा या दुनिया के घर घर तक इस्लाम पहुंचा दूंगा। एक रात समंदरों के पास हिंदुस्तान में इस्लाम किसकी मेहनत है। आप ये मत सोचना कि मौलाना अहमद रसूल पे तो बोले नहीं, मेरा मौजू ही यही था, वो जो मौजू दिया जाता है उसी के मुताबिक बयान होता है। बात सही है कि नहीं? बोले सुभान अल्लाह। चचा जान दे दूंगा या तो घर घर इस्लाम पहुंचा दूंगा या रब के दीन पे कुर्बान हो जाऊंगा। अबू तालिब फरमाते ऐसी बात है भतीजे का जी चचा। फरमाया जब तबलीग इस्लाम कर, जब तक अबू तालिब जिंदा है तुझे कोई छू नहीं सकता। जब ऐसा मेहरबान चचा हो तो कोई क्या कर
जब ऐसा अजीम उस्सान चचा हो तो कोई क्या कर लेगा। अबू तालिब फरमाते करो तबलीग, तुम्हारा चचा मेरे तुम्हारे साथ है। अब जब मक्का वालों ने देखा ना मोहम्मद मान रहे हैं ना अबू तालिब मान रहे हैं, तो मीटिंग करने लगे। मीटिंग कहाँ करने लगे? दारुल नदवा में। जोर से बोलो कहाँ? जोर से बोलो कहाँ? ये मक्का का पंचायत घर था दारुल नदवा। मक्का के 40 सरदार जमा हुए और इस महफिल में अगर मक्का में कोई जरा सा भी असर और रसूख रखता था तो वो भी मौजूद था। और इसी मीटिंग में बूढ़ा भी आया, कांपता हुआ जिस्म है, बुजुर्गी का आलम है, सर पे चादर ओढ़े हुए है। लोगों ने पूछा भाई तू कौन है? तो इसने कहा मैं शेख नजदी हूँ, मैं भी मशवरा देने आया हूँ। मगर वो नहीं जानते थे शेख नजदी नहीं है, इंसान की शक्ल में इबलीस आया। इबलीस आए तो मशवरा देने के मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह अकबर, मीटिंग शुरू हो गई। सदारत इबलीस को मिली, शेख नजदी को मिली। जानते मुसलमानों, पहला मुशरिक खड़ा हुआ और इसने खड़े होकर कहा मेरी ये तुमसे गुजारिश है, मेरी तुम्हारे सामने तरकीब ये है, तरकीब ये है कि मोहम्मद को एक कमरे में बंद कर दिया जाए। जब मोहम्मद कमरे में बंद हो जाएंगे, एक सुराग से खाना पानी दिया जाए। जब वो कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर वो कुरान भी नहीं सुना पाएंगे, वो तबलीग इस्लाम भी नहीं कर पाएंगे। शैतान बोला नहीं, ये तरकीब काम नहीं आएगी, क्योंकि मोहम्मद के दीवाने ऐसे हैं, उन्हें पता चला जान दे देंगे मगर फिर भी मोहम्मद को आजाद करा देंगे। अरे यही तो शान है मोहम्मद के दीवानों की, यही तो अल्लाह पर कमाल है मोहम्मद के दीवानों का। शैतान बोला ये तरकीब भी नहीं चलेगी। दूसरा मुशरिक खड़ा हुआ, उसने कहा मेरी तरकीब ये है, मेरा मशवरा ये है कि मोहम्मद को मक्का से बदर कर दिया जाए। जब मोहम्मद मक्का में नहीं रहेंगे तो इस्लाम मक्का से निकल जाएगा। इब्लीस बोला लानत तेरी तरकीब कर, मोहम्मद जहां भी जाएंगे उसी जगह को इस्लाम का गहवारा बना देंगे। कहने लगा तुमने देखा नहीं कुरान में कितना असर है, मोहम्मद की जबान में कैसा जादू है। जिससे बात कर लेते उसे अपना बना लेते, जिससे बात कर लेते उसे कहा ये तरकीब भी नहीं चलेगी, मोहम्मद जहां जाएंगे इस्लाम फल जाएगा, फूट जाएगा। कि मुस्तफा का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल खड़ा हुआ और बोला मेरी तरकीब सुनो, मेरी सबसे अच्छी तरकीब है मेरी। उमैया बोला तू भी बोल, शैबा बोला तू भी बोल। तो अबू जहल ने कहा लोगों मेरी तरकीब सुनो, मैं चाहता हूँ इस वक्त यहाँ पर मक्का के 40 सरदार मौजूद है। 40 कबीलों में से एक एक नौजवान का इंतखाब किया जाए, जो बहादुर भी हो, जो हिम्मत वाला भी हो, जो शुजा भी हो। अल्लाह अकबर, 40 नौजवान रात में मोहम्मद के घर को मुहासरे में ले ले, मोहम्मद के घर को चारों जानिब से घेर ले। जब मोहम्मद सुबह को फजर के लिए उठे तो एक साथ 40 लोग तलवारों से हमला करें। जब 40 कबीलों के लोग मोहम्मद को कत्ल करेंगे तो किसी में हिम्मत नहीं है जो मोहम्मद के कत्ल का बदला ले सके, ये 40 कबीलों से जंग कर सके। अगर कत्ल के बदले में पैसे मांगेंगे तो थोड़े से पैसे कुरैश वालों को दे देंगे। अल्लाह अल्लाह, इधर कुफ्फार अपनी तरकीबें लड़ा रहे थे, कुफ्फार अपनी तदबीर कर रहे थे, कुफ्फार अपना मशवरा कर रहा था। उधर अल्लाह की रहमतें मुस्कुरा रही थी और रब की रहमतें मुस्कुरा करके रही थी। इन्हें मक्का वालों को मालूम नहीं है फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या मुझे जिसे रोशन खुदा करे। इधर कुफ्फार अपनी अपनी तरकीबें लड़ा रहे थे, उधर रब ने फरमाया जिब्रील जा। क्या फरमाया रब ने? जिब्रील जाओ और मेरे महबूब से कहो कि सफर सामान को बांध ले, मक्का से हिजरत करें, मदीना पहुंचे। अल्लाह मदीना को इस्लाम की राजधानी बनाना चाहता है। अल्लाह मदीना को इस्लाम की राजधानी बनाना चाहता है। जिब्रील आए, आपने अर्ज किया या रसूल अल्लाह तैयारी करें, सामाने सफर बांध लें। अल्लाह फरमाता है मक्का से हिजरत करें। अल्लाह मदीने को इस्लाम की राजधानी बनाएगा। आका अकेले नहीं जाएं बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपने साथ लेकर जाए। अल्लाह अल्लाह, दोपहर का वक्त था, मेरे अबू बकर ने अल्लाह अल्लाह जब दस्तक को सुना, दरवाजा खोल दिया। कहते फिदा का उम्मीद वाबी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क्या हिजरत का हुक्म हो चुका है? अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते हाँ अबू बकर, हिजरत का वक्त हो चुका है। अबू बकर फरमाते हुजूर मुझे भी साथ ले गए। नबी ने फरमाया अबू बकर तुम भी चलोगे? अबू बकर कहते इतना सुना मेरी आंखों में आंसू आ गए, इसलिए कि मैं हुजूर का
हम सफर बनने वाला था, मैं हुजूर के साथ जाने वाला था। अबू बकर सिद्दीक फरमाते आका मैंने 2 ऊँटनियों को बबूल के पत्ते खिला खिलाकर सफर हिजरत के लिए तैयार किया है। या रसूल अल्लाह आप भी चलेंगे, आपके पीछे गुलाम भी चलेगा। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं अबू बकर सफर की तैयारी करो। अबू बकर ने थोड़ा सा खाना लिया, अबू बकर सिद्दीक ने थोड़ा सा सामान लिया। मेरे नबी अबू बकर सिद्दीक के घर से तशरीफ लाए और फरमाया आईना अली इब्न अबी तालिब, अबू तालिब का बेटा अली कहाँ है? अली कहते हुजूर हाजिर है आपका गुलाम। अभी हजरत अली की उम्र सिर्फ 14 बरस की थी। बोले मचल कर सुभान अल्लाह। कुछ किताबों में आता है 16 बरस की थी। मौला अली फरमाते हुजूर गुलाम हाजिर है। नबी फरमाते अली आज हम हिजरत करेंगे, कुफार तलवारों से इस घर का मुहाजिरा करेंगे। तुम्हें मेरे बिस्तर पे सोना है, सुबह को उठना है, मक्का वालों की अमानतें वापस करनी है, सुबह मदीना आना है। अली फरमाते हुजूर ये तो एक रात है, अली से जान मांगो कि जान दे देगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ी कम करो आवाज, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। अली फरमाते ये तो एक रात है, जान मांगो कि जान दे दूंगा। बोले सुभान अल्लाह। एक बार और मचल कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी चले हिजरत में, अबू बकर सिद्दीक को साथ लिया। हजरत अबू बकर ने अपने गुलाम से कहा कि तुम्हें 12 सूर के करीब बकरियां चरानी है। पहला फायदा ये होगा हमारे कदमों के निशान मिट जाएंगे, और दूसरा फायदा होगा भूख लगेगी तो बकरियों का दूध पी लेंगे। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने अपने घर में तैयारी शुरू कर दी। जब सामान सफर तैयार हो गया, उधर मक्का के 40 नौजवानों ने नबी को कत्ल करने के लिए, नबी का काम तमाम करने के लिए मुस्तफा करीम के घर को घेर लिया, घर को मुहासरे में ले लिया। अल्लाह अकबर, ये जालिम इंतजार कर रहे हैं कब नबी निकल कर आए, कब नबी पे तलवारें बरसाई जाए, कब नबी निकल कर आए, कब नबी को कत्ल किया जाए। अभी नबी कदम बाहर को निकालने वाले थे, जिब्रील हाजिर हो गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह आपके घर को मक्का के 40 जालिमों ने घेर रखा है, उनका इरादा बड़ा खतरनाक है, चाहते हैं कि आप कदम निकालें तो आपको कत्ल कर दिया जाए, आपका काम तमाम कर दिया जाए। मेरे नबी फरमाते हैं फिर क्या करूं जिब्रील? हजरत जिब्रील कहते हैं अल्लाह का हुक्म है सूरह यासीन की तिलावत करो, कुरान को अपने घर में रख दिया है। अब मेरे नबी ने ताजुज़ पढ़ी, बसमला पढ़ी, आका करीम फरमाते हैं यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। नबी ने इतना पढ़ा, मुस्कुराए, चंद कंकड़ियां हाथों में ली, कुफार के मुंह पे डाल दी। नबी निकल कर चले गए, मगर किसी जालिम को नजर नहीं आए। अल्लाह ने फरमाया इस रवई था फलाकिन अल्लाह हरमा। नबी तुमने जो कंकड़ी फेंकी थी हाथ तुम्हारा था, मगर ताकत परवरदिगार आलम की थी। सुभान अल्लाह। क्या बात है, वाह वाह। फरमाया अल्लाह ने हाथ तुम्हारा था, मगर ताकत बोलो जोर से किसकी थी? नबी निकल कर चले गए, किसी मुशरिक को नजर ना आए, किसी काफिर को नजर ना आए। जब नबी मक्का से जा रहे थे, अबू बकर सिद्दीक के साथ के ऊँटनी पर सवार थे। एक और नबी का दुश्मन मिला जो तिजारत के वास्ते गया था। जब मोहम्मद इतनी जल्दी में कहाँ हो? हजरत मोहम्मद फरमाते अल्लाह की बारगाह में सफर करना है। अब नबी तो निकले चले गए, और वो जालिम सुबह तक नबी के घर को घेरे हुए थे। आंखों के अंधे, अकल के कच्चे, दिमाग से पैदल जब हुकूमत नबी के घर में दाखिल हुए तो नबी के बिस्तर पे अली सो रहे थे। सुभान अल्लाह। अदाएं सब मुस्तफा के हुबहू थी, हाथ भी सुन्नत के मुताबिक, पैर भी सुन्नत के मुताबिक, सोना भी सुन्नत के मुताबिक। बोले अली तू यहाँ, नबी कहाँ है? आका फरमाते मुस्तफा ने तुमको अंधा कर दिया। नबी निकल कर चले गए, तुम्हें पता ना चला। जालिम बाहर को दौड़े तो वही नबी को मिला था रात में, कहने लगा जालिमों तुम यहाँ तलाश कर रहे हो, मैंने रात मोहम्मद को हिजरत करते देखा। सुभान अल्लाह। मक्का में कोहराम लग गया, ढूंढो, पकड़ो, तलाश करो, कत्ल कर दो। अल्लाह की रहमत बोली जिसे हम जिंदा रखें उसे कोई मार नहीं सकता। सुभान अल्लाह। ऐलान कर दिया गया कि मोहम्मद को ढूंढेगा ऊंट मिलेंगे।
घोड़े मिलेंगे, सोना चांदी मिलेगा, चारों जानिब दौड़ना शुरू कर दिया। अगर मेरे हुजूर अबू बकर सिद्दीक के साथ एक पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, झाड़ियों से हुजूर के पैर लहूलुहान हो गए, पत्थर की नोकों से हुजूर के पैर लहूलुहान हो गए। आलम ये था आका से चला नहीं जाता था। अल्लाह की कसम जनाबे अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आपके पैर जख्मी हो गए हैं, आप अबू बकर सिद्दीक के कांधों पर सवार हो जाइए। मेरे नबी अबू बकर सिद्दीक के कांधों पर सवार हो गए। जब पहाड़ की चोटी पर चढ़े तो इसी पहाड़ की चोटी पर एक गार था जिसको दुनिया गारे शोर के नाम से जानती है। बोलो आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? नबी ने गारे शोर में दाखिल होना चाहा। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं हुजूर ठहर जाइए, पहले आका नहीं बल्कि गुलाम बाद में जाएगा। सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह, बोले। नबी फरमाते हुजूर ठहरिए, नबी फरमाते हुजूर ठहरिए, पहले गुलाम जाएगा फिर आका जाएंगे। नबी फरमाते अबू बकर सिद्दीक क्या वजह है? तो अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया था आका इस गार में कभी कोई नहीं गया है, आका अंधेरा गार है, आका सन्नाटा है गार में। या रसूल अल्लाह मेरे दिल की तमन्ना ये है, ऐसा भी तो हो सकता है गार में कोई सांप हो आपको काट भी सकता है, गार में कोई कीड़ा हो आपको डस भी सकता है। या रसूल अल्लाह पहले गार में गुलाम जाएगा, आका अगर सांप डसेगा तो अबू बकर को डसेगा, अगर सांप काटेगा तो अबू बकर को काटेगा। तो मैं क्यों ना बोलूं वो जो बरेली के इमाम ने बोला था, कब तेरे नाम पे जा फिदा, बस जान क्या दो जहां फिदा, बस जान क्या दो जहां फिदा। बोले जोर से बस जान क्या दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अबू बकर सिद्दीक गारे शोर में दाखिल हुए। अल्लाह अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक ने गारे शोर के सुराखों को बंद करना शुरू कर दिया। एक सुराख को बंद किया, दो को बंद किया, 10 को 20 को, जितने भी गारे शोर में सुराख थे सबको बंद कर दिया। अर्ज करते हुजूर गारे शोर के सुराखों को बंद कर दिया है, गारे शोर को सफा कर दिया है। हुजूर आप तशरीफ लाए, जब मेरे नबी पढ़े तो अबू बकर सिद्दीक ने क्या देखा कि एक सुराख बाकी रह गया है। अबू बकर ने उस सुराख पर अपनी एड़ी रख ली, हुजूर की बारगाह में अर्ज किया हुजूर आप थक चुके हैं, हुजूर आप आराम कर ले। अबू बकर सिद्दीक का जानू था और मुस्तफा का सरे मुबारक था, नबी का जलवा था। अबू बकर सिद्दीक की नजर थी, अबू बकर का दिल कह रहा था अबू बकर मुबारक कायनात की नेमत सिमट कर तेरी आगोश में आती है, कायनात की रौनक सिमट कर तेरे दामन में आ गई है। अबू बकर जी भर के देख ले, अबू बकर मन भर के देख ले, इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। इधर अबू बकर नबी के चरणों में खोए हैं, नबी के इश्क में खोए हैं। उलमा फरमाते हैं उस गार में एक सांप रहता था। कौन रहता था? बोले सांप रहता था, हजारों साल से नबी का मुंतजिर था, सदियों सदियों से नबी के इंतजार में था, युगों युगों से नबी के इंतजार में था। किसी पैगंबर से सुना था कि जब नबी हिजरत करेंगे तो गारे शोर में मेहमान बनेंगे। सुभान बोलो अल्लाह, यार, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, समझ में आ रही है? पीछे तक तो पीछे तक हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, नबी गारे शोर में 7,000 साल से इंतजार कर रहा था। आला हज़रत फरमाते उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं ऊंचे बसा दिए हैं, उनके निसार कोई कैसे भी रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब हम बुला दिए हैं। जब नबी गारे शोर में दाखिल हुए तो सांप ने मुस्तफा की खुशबू को सूंघ लिया, पहचान लिया। अब सांप ने जब सुराख से निकलना चाहा, इसलिए कि महबूब की दीदार का वक्त करीब था, जिसका सालों इंतजार किया वो दीदार के लिए गारे शोर में आ चुका था। जब सांप ने सुराख से निकलना चाहा तो पत्थर था, दूसरे सुराख पे पहुंचा तो पत्थर था, तीसरे पर पहुंचा तो पत्थर था। टंक मारते मारते परेशान हो गया, जख्मी हो गया। एक जगह सांप ने महसूस किया पत्थर नहीं है, किसी इंसान के मांस का लोथड़ा है, किसी इंसान के मांस का अल्लाह अकबर टुकड़ा है। जब सांप ने सोचा कि जो भी नबी के साथ आया है वो नबी का आशिक है, सांप ने कहा अबू बकर काश तू अपनी एड़ी को हटा ले। आशिक आशिक में ठन गई। अबू बकर कहते थे नबी को कुछ करने से पहले अबू बकर की जान से गुजरना पड़ेगा। सांप कहता था अबू बकर एड़ी को हटा दे, मैंने तो सदियों इस दिन का इंतजार किया है, मैंने युगों इस लम्हे का इंतजार किया है। जब अबू बकर सिद्दीक ने एड़ी को नहीं हटाया, सांप ने कैसा फरमाते हैं यार यार मुस्तफा, मुझे यूं लगा जैसे तमाम दुनिया के टुकड़ों तक मेरी नसों में सरायत कर गए हो, पहाड़ों
वजन मेरे सर पर रख दिया गया हो, मैंने रोना चाहा, मैंने चीखना चाहा, मगर इश्क बोला अबू बकर रोना नहीं है, इसलिए कि तेरी जान से ज्यादा मुस्तफा की नींद चल रही है, अगर जान जाए तो जाए, नबी के आराम में खलल न पड़े। अबू बकर कहते फिट डसा, जब चौथी बार डसा तो मेरे जिस्म का जो दर्द था मेरी आंखों से आंसू की शक्ल में बहा, इसने मेरी रीछ को, मेरी दाढ़ी को पार किया और नबी के रुखे अनवर पर जा गिरा। कौन सा रुखे अनवर जिसके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही धूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। कौन सा रुखे ज़ेबा जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, कौन सा रुखे ज़ेबा जो तमाम दुनिया की रौनक तराना था। अबू बकर तेरे आंसुओं पे कुर्बान जाऊं, अगर गिरे तो नबी के रुखे ज़ेबा पर। अब जब अबू बकर के आंसू नबी के चेहरे पर गिरे तो नबी जाग गए, बोले सुभान अल्लाह। नबी फरमाते मन युब्ही का या अबू बकर, अबू बकर किसने रुलाया, क्यों परेशान है, क्यों रो रहा है? अबू बकर कहते हैं आपका सांप ने काट लिया है। नबी फरमाते अबू बकर ये हमें नुकसान भी पहुंचाएगा, इसलिए कि तू हमारा बड़ा आशिक है, ये हमारा छोटा आशिक है। जैसे तू दीदार कर रहा है वैसे ही सांप दीदार करने आया था। मेरे अबू बकर सिद्दीक ने एड़ी को हटाया, नबी ने लुआबे दहन लिया, अबू बकर सिद्दीक की एड़ी पर लगाया। अबू बकर फरमाते मुझे यूं लगा जैसे कभी सांप ने डसा ही नहीं था। शायर कहता है तकदीर चमकने के आसार नजर आए, जब मतलाए हस्ती पे सरकार नजर आए, जैसे ही खुदा उनकी रहमत का शिफा खाना, दुनिया के अतिबा भी बीमार। सुभान अल्लाह। अबू बकर फरमाते हैं यूं लगा जैसे सांप ने डसा ही नहीं था। और जालिम कह रहा है कि नबी कुछ नहीं है, खाली पैगंबर थे, आए गए पैगाम दिया, बात खत्म। मगर मेरा ईमान कहता है अल्लाह की सरताबा कदम शान है। सुभान अल्लाह। अगर रब के जलवे महसूस करने हो तो मुस्तफा की सीरत को पढ़ो। कहने पे मजबूर हो जाओगे जब नबी ऐसे है तो खुदा कैसा होगा, जब महबूब ऐसा है तो मुहिब कैसा होगा, जब माशूक ऐसा है तो खुदा कैसा होगा। बोले बोले मचल कर सुभान अल्लाह। अबू बकर फरमाते यूं लगा जैसे सांप ने डसा नहीं था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन गारे सूर में रहे, 2 दिन गारे सूर में रहे, जब तीसरा दिन हुआ ना तो मक्का के जालिम व मुशरिक नबी को ढूंढते गारे सूर के तहाने पर पहुंच गए, इतने करीब हो गए। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं आका अगर इन लोगों ने अपने पैरों को देख लिया तो ये लोग हमें तलाश कर लेंगे। मक्का वाले नबी को ढूंढ रहे थे, जब मक्का वाले गार के करीब आए तो अल्लाह ने फरमाया मकड़ी मेरे महबूब की हिफाजत के लिए जाले बुन दे, मेरे महबूब को बचाने के लिए जाले बुन दे। मकड़ी ने जाला बुन दिया। अल्लाह फरमाता है मकड़ी, अल्लाह ने फरमाया कबूतरी अंडे दे दे, घोंसला बना दे। कबूतरी ने अंडे दे दिए, घोंसला बना दिया। मक्का के काफिरों ने अपने पैरों की जानिब नहीं देखा, कहने लगे अगर मोहम्मद और अबू बकर इस कार में गए होते तो मकड़ी का जाला टूट गया होता, कबूतरी उड़ गई होती, कबूतरी के अंडे गिर गए होते। मगर उन्हें मालूम क्या है अल्लाह की शान वो है, अगर चाहे तो मकड़ी के जाले से अपने प्यारे नबी को बचा ले, अगर चाहे तो कबूतरी के जरिए अपने महबूब की हिफाजत फरमा दे। जब अबू बकर सिद्दीक ने कहा था या रसूल अल्लाह अगर ये कदमों को देखेंगे हमें पकड़ लेंगे, तलाश कर लेंगे, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है मगर मुझे आपका खदशा है, ये आपसे बदतमीजी करेंगे, ये आपको कत्ल करने की कोशिश करेंगे। उस वक्त में जब कोई नहीं था, न खानदान साथ था, न चचा साथ थे, न कोई दोस्त अहबाब साथ था, मेरे नबी का ईमान देखो, मेरे नबी का यकीन देखो। आका फरमाते हैं ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर घबराने की जरूरत नहीं है, तेरे मेरे साथ अल्लाह है। अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे साथ अल्लाह है, अल्लाह। और सदाएं गूंजी अबू बकर घबरा मत, जो खुदा तुझे महबूब का दोस्त बना सकता है वो खुदा तुम दोनों की जान भी बचा सकता है। आकर 3 दिन गारे सोर में रहे, चौथे दिन हुजूर गारे सोर से निकले, रास्ता दिखाने वाला साथ था। नबी ने सीधा रास्ता इख्तियार नहीं किया कि कहीं मक्का वाले पकड़ न ले। नबी समंदर के किनारे किनारे चले, इधर नबी चले, उधर मदीना वाले हुजूर का इंतजार कर रहे। सुभान अल्लाह। मदीने वालों ने मदीने को सजा दिया था, सजा। पहले चिराग जलते थे,
अब लड़ियां झिलमिला रही हैं। सुभान अल्लाह आशिक मदीने में भी थे, आशिक मुरादाबाद में भी। सुभान अल्लाह तो लड़ियां जगमगा रही है ना, मदीने में चिराग जल रहे थे। वो लोग कह रहे थे कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, कि मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन पे गूंज उठा तलाल बदरु अलैना। सुभान अल्लाह क्या गूंज उठा? तलाल बदरु अलैना। मदीने वालों मुबारक हो, मक्का का चोटी का चांद मदीने में आ गया। सुभान अल्लाह कभी आकर रुके कुबा में, कहाँ रुके बोलो? ये मदीने से पहले एक बस्ती है जो 2.5 मील पहले पड़ती है। नबी रुके, आका ने वहाँ पर मस्जिद बनाई। फरमाया ये इस्लाम की पहली मस्जिद है, जो 2 रकत पढ़ेगा अल्लाह 25,000 रकतों का सवाब अता फरमाएगा। 1 रकत पढ़ोगे सवाब कितना मिलेगा? 25,000 रकतों का। अब मदीने वाले कह रहे हुजूर मेरे घर रुकेंगे, हुजूर मेरे घर रुकेंगे, हुजूर मेरे घर रुकेंगे। गरीब बोले मेरे मेहमान बने, अमीर बोले मेरे मेहमान बने। ये आजकल के लोग हैं जो ऊंची बिल्डिंग देखकर रुकते हैं, मगर नबी आखिर तो सब पैगंबरों से आला है, तमाम कायनात से आला है, तमाम लोगों से अफजल है। नबी ने फरमाया लड़ो मत, दिल थोड़ा मत करो, ऊँटनी की लगाम छोड़ दो, जहाँ बैठ जाएगी नबी उसी का मेहमान बनेगा। सुभान अल्लाह पता चला नबी तो नबी, सवारी को मालूम है कि नबी का मकाम कहाँ है। जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जान। अरे तू नहीं मानता तो मत मान। हमारा अल्लाह कहता है वमा हुवा अलल गैबी बिदनीन। आप है बताने में कंजूस नहीं है, जो जितना पूछेगा आप जितना बताएंगे। जी सुभान जो पूछेगा वो बताएंगे। और मेरा इमाम कहता है और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरू तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पर चांद सा, सीने पे रखो जरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। एक तरफ है हासिदी, एक तरफ है दुश्मने दी, एक तरफ आदाएं दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। नबी फरमाते लगाम छोड़ दो, जहाँ सवारी बैठेगी मुस्तफा मेहमान बन जाएंगे। यार मचलकर बोले हैं सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है बात? जी बात को मुकम्मल कर दूं मुकम्मल। तो एक बार और कहें अल्लाह के रसूल के नाम पर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह नबी फरमाते लगाम छोड़ो, जहाँ ऊँटनी बैठेगी वहाँ नबी रुकेंगे। मदीने की गलियों में ऊँटनी फिर रही है, जिसके घर के पास से गुजरती उसकी आंखों में आंसू आ जाते। अफसोस मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे मेहमान नहीं बने। आका करीम फरमाते हैं मदीनतुल मुनव्वरा में एक मेरा सहाबी है जिसका नाम अबू अय्यूब अंसारी है। जब मदीना बसा था, जिसने बसाया था सबसे बड़े आलिम की औलाद में से है। मकान अल्लाह अकबर, अमीरों का घर छोड़ दिया, ताजरों के घर से आगे बढ़ गई ऊँटनी। बड़े बड़े अमीर हाथ मलते रह गए। ऊँटनी जाकर बैठी तो एक गरीब के दरवाजे पर जाकर बैठी। ऊँटनी जाकर बैठी तो उसके दरवाजे पर बैठी। जो सुबह को खा लेता था तो शाम को नहीं मिलता था, जो पैबंद लगे कपड़े पहनता था। जब अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पे ऊँटनी बैठी तो अबू अय्यूब अंसारी दहाड़े मारकर रोने लगे। लोगों ने कहा अबू अय्यूब क्यों रो रहा है? तेरी किस्मत खुल गई है, मुकद्दर का सिकंदर बन गया है, कायनात का दूल्हा तेरे घर का मेहमान बन गया है। अबू बकर कहते लोगों ये दुख के आंसू नहीं है, ये गम के आंसू नहीं है, बल्कि ये तो खुशी के आंसू है। अरे मेरी किस्मत कहाँ थी ऐसी कि आमना का बेटा मेरा मेहमान बनता, नबियों का ताजदार मेरा मेहमान बनता। ये तो मेरे नबी का करम है, ये तो मेरे नबी का करम है, ये तो मेरे नबी का फैजान है। मेरा इमाम कहता है उनके निसार को ही कैसे भी रंज में हो, जब याद आ गए हैं, सब गम भुला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए। सुभान अल्लाह। नबी मेहमान बने मक्का में बहारें छा गई। लोग कहते थे मक्का ना जाना, मक्के के लोग बीमार रहते, मक्का बीमारियों का घर है। जब नबी पहुंचे तो अल्लाह ने मक्का को दारुल शिफा बना दिया। सुभान अल्लाह। बहारें पुनर्वार हो गई, गलियां मुस्कुरान हो गई, इसलिए कि मदीने का इमाम मदीना तशरीफ ला चुका था। मक्का वालों ने हुजूर की बारगाह में पल के बिछा दी, पल में। एक दिन
क्या हुआ? हदीस पाक में आता है, जब नबी सुबह को बेदार हुए, आका ने फजर की नमाज पढ़ी। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दरवाजे पर आए तो क्या देखा? नबी के दरवाजे पर सोना चांदी के ढेर लगे हैं, नबी के दरवाजे पर अनाज के खजूरों के ढेर लगे हैं, नबी के दरवाजों पर कागजात रखे हुए हैं। वो देखा कि मक्का के लोग इकट्ठे होकर नबी के दरवाजे पर आ गए हैं। आका फरमाते, मक्का वालों ये क्या है? तो मक्का वालों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम तो बीमार थे, आप आए तो हमें शिफा मिल गई है। हमारी कोई इज्जत नहीं थी जमाने में, यहूदियों ने गुलाम बना रखा था, यहूदी आपस में लड़ाते थे, आप आ गए तो हमको मदीर अल्लाह अल्लाह जमाने के लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ा दिया। या रसूल अल्लाह, तेरे करम पे कुर्बान जाए, तेरी मेहरबानी पे कुर्बान जाए। आका तुम्हारे कहने से, आका तुम्हारी वजह से खुदा का पता चला, तुम्हारी वजह से दीन मिला, आपकी वजह से कुरान मिला, आपकी वजह से कब्र को जाना, आपकी वजह से हश्र को जाना। या रसूल अल्लाह, हम चाहते हैं जब आपने इज्जत दी है, आपने वकार दिया है, आपने करम किया है, तो ये सोना हमारा अपनी बारगाह में कबूल करे, ये खजूरें कबूल करे, ये हमारे घर के कागजात कबूल करे। नबी फरमाते हैं, नाना मदीने वाले, मुझे सोने की जरूरत नहीं है, मुझे चांदी की जरूरत नहीं है। अरे मेरी शान तो ये है, पहाड़ों को इशारा कर दूं तो पहाड़ मेरे पीछे सोना बनकर चले। अगर मुझे चाहिए तो मैं चाहता हूँ मेरे सहाबा से मोहब्बत करो, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरी अज़वाज से मोहब्बत करो। अगर तुम मेरे करीबियों से मोहब्बत करोगे, जब तक जियोगे, आबाद रहोगे, हश्र में पहुंचोगे तो जन्नत के हकदार बन जाओगे। सुभान अल्लाह। मैंने अर्ज किया था, मक्का वालों ने पल के बिछा दी नबी के सामने, सुभान अल्लाह। अब जब मदीना वालों ने पल के बिछा दी, कहने लगे, हुजूर हमारे तो बादशाह आप ही हैं, हमारे तो सरदार आप ही हैं, हमारे तो जो कुछ है सब कुछ आप ही हैं। सुभान अल्लाह। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में रहने लगे। उधर मक्का वालों को पता चला। आप जानते हैं ना, इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, बल्कि दूसरे के सुख से दुखी है। ये दुनिया का मिजाज है ना, अपना दुख नहीं दिखेगा, दूसरे का पैसा दिखेगा, दूसरे का बैंक बैलेंस दिखेगा, दूसरे का मकान दिखेगा। मक्का वालों ने सोचा, हमने मोहम्मद को भेजा था मक्का से, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, दुखी रहेंगे, मगर मदीना वालों ने तो सरों का ताज बना दिया। सुभान अल्लाह। तैयारी किस तरह से करने लगे? मुसलमानों पर जुल्म बढ़ा दिया, मुसलमानों के मकान छीन लिए, मुसलमानों को अपने कैद खाने में डाल दिया, अपने मकानों में बंद कर लिया, मुसलमानों को अल्लाह अकबर लोहे से दागते, मुसलमानों की पुष्ट पे कोड़े मारते, हुजूर को उकसाते। अल्लाह अकबर मिजाज ऐसा बना कि जंग तैयार हो गई, जंग बिल्कुल अटल हो गई, जंग टलने वाली नहीं थी, क्योंकि मक्का वाले समझ रहे थे मदीने वाले कमजोर हैं, मदीने वाले गरीब हैं, हमसे क्या ही लड़ेंगे। मगर उन्हें पता नहीं था कि उनके साथ कायनात का दूल्हा जा मिला है, उनका सरदार कायनात का दूल्हा मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अल्लाह अकबर। मक्का में ऐलान कर दिया गया, इस्लाम को मिटाना है, मोहम्मद को मिटाना है, चलो लश्कर लेकर चलो। 1050 का लश्कर तैयार हुआ मक्का में। मक्का की औरतों ने कहा, अबू जहल सोना ले जा, चांदी ले जा, हमारे बेटों को ले जा, जा मोहम्मद का नाम मिटा देना, मोहम्मद का दीन मिटा देना। अल्लाह की रहमतें मुस्कुरा रही थी इनको। सुभान अल्लाह। अंधेरा उजाले से लड़ने चला था। अबू जहल के कॉन्फिडेंस का आलम ये था, यूं रस्सी को घुमाता था, कहता था इसी रस्सी से मोहम्मद को बांध कर लाऊंगा, माज़अल्लाह मक्का के चौराहे पर फांसी दूंगा, फांसी। किस्मत का कलम चल चुका था और अबू जहल की किस्मत में रुसवाई लिखती थी। अबू जहल ने अल्लाह अकबर 1050 लोगों का लश्कर तैयार किया, इनमें कोई बच्चा नहीं था, इनमें कोई बूढ़ा नहीं था। अल्लाह अकबर। ये लश्कर चला मक्कातुल मुअज़्ज़मा से, किस लिए? इस्लाम को मिटाने के लिए, किस लिए? नबी के दीन को रोकने के लिए, किस लिए? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को गिरफ्तार करने के लिए। अल्लाह। इनके पास पीने को शराब भी थी, इनके पास चढ़ने को घोड़े भी थे, इनके पास सवारी को ऊंट भी थे, भुने हुए गोश्त खाकर चल रहे थे, दिल बहलाने के लिए मक्का की ओर अपने साथ लेकर चल रहे थे। अबू जहल ने आका करीम को खत लिखा। खत का मफहूम ये था, मोहम्मद जितने भी लोग मक्का से मदीना को हिजरत करके गए हैं, मैं अबू जहल तुम्हें हुक्म देता हूँ कि सब के सब मक्का को वापस आ जाओ। अगर तुम मक्का को वापस आ जाओगे तो अबू बकर सिद्दीक को फांसी दी जाएगी, उमर को फांसी दी जाएगी, उस्मान को, अली को फांसी दी जाएगी, मदीना के लोगों से कुछ नहीं कहा जाएगा, तुमको कैद में डाल दिया जाएगा।
گا اور اے محمد اگر تم مدینہ سے واپس نہیں آئے تو ہم مدینے پہ آکرمن کریں گے, ہم مدینے کا محاصرہ کریں گے, مدینے کے بچوں کو قتل کر ڈالیں گے, مدینے کی عورتوں کو بازاروں میں بیچ دیں گے, مدینے میں خون کے دریا بہا دیں گے. اللہ اکبر. ایک انسان مکہ کا چلا, اس نے جا کر حضرت بلال کے ہاتھ میں خط دیا. دینے کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ پڑھو تو صحیح. ایک صحابی نے خط پڑھا, لکھا تھا اے محمد مکہ واپس آ جاؤ, اپنے ساتھیوں کو لے آؤ, اگر تم مکہ واپس نہیں آئے تو مدینے کے پھولوں کو قتل کر دیں گے, عورتوں کو باندھی بنا لیں گے, کنیز بنا لیں گے. میرے سرکار نے اتنا سنا تو حضور کے چہرے پر جلال آ گیا. نبی فرماتے ہیں بلال جا تو صحیح, مدینے میں اعلان کر دے اسلام پیارا ہے یا جان پیاری ہے. جاؤ کہو جا کر کون ہے جو اسلام کے لیے جان دے, کون ہے جو اسلام کے لیے مال دے. بلال پہنچے مدینے میں, فرمایا مدینے والو چلو, آمنہ کے لال نے بلایا ہے. سبحان اللہ. بلال کہتے پھر رہے چلو چلو چلو. 360 لوگوں کا لشکر آ کر نبی کے سامنے کھڑا ہو گیا, دست بستہ. کہنے لگے حضور حکم فرمائے, حضور بتائے صحیح کیا کرنا ہے. تو نبی فرماتے مکہ کا لشکر آ رہا ہے. صحابہ بولے حضور پھر. آقا نے فرمائے 1050 کا لشکر ہے. کہا حضور پھر. کہنے لگے دل بہلانے کو ناچنے والی ساتھ ہے, میوزک ساتھ ہے. صحابہ بولے حضور پھر. نبی فرماتے ہیں کیا تم ان سے جنگ لڑو گے. ایک نبی کے صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام حضرت مقداد ہے. کہنے لگے آقا یہ تو مکہ کے 1050 ہیں, آپ کہیں تو سمندروں میں پہنچ جائیں, آپ کہیں تو جنوں کے سینوں میں اسلام کے نیزے سے سراغ کر ڈالیں. نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ سوچ لو تم, اللہ میرے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ سوچ لو تم 313 ہو, وہ 1050 ہیں. تمہارے پاس 2 تلواریں ہیں, ان کے پاس ہزار تلواریں ہیں. تمہارے پاس اللہ اکبر چند گھوڑے ہیں, ان کے پاس 1000 گھوڑے ہیں. تم بھوک کے پیاسے ہو, تمہارے حال زار کا عالم یہ ہے, تمہارے پیٹ تمہاری پشتوں سے لگے ہوئے ہیں. بتاؤ پھر بھی چلو گے. تو 313 صحابہ نے یہ زبان ہو کر کہا تھا یا رسول اللہ حکم تو دے. آپ کہیں تو پتھروں سے لڑ جائیں, آپ کہیں تو سمندر میں کود جائیں. یا رسول اللہ یہ تو مکہ کے کافر ہیں, آپ کہیں تو جنوں سے لڑ جائیں. نبی فرماتے سوچ لو. تمام صحابہ نے یہ زبان ہو کر کہا تھا یا رسول اللہ موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو ڈر جائے گی, امت محمد کی ہے جان دے دے گی مگر واپس نہیں آئے گی. سبحان اللہ. امت کس کی ہے بولو, جان دے دے گی مگر واپس نہیں آئے گی. نبی فرماتے تو چلو دیوانوں. کیا فرمایا نبی نے, چلو دیوانوں. روزے کی حالت میں تھے, روزے کی. 13 سال کے بچے بھی تھے, 80 سال کے بوڑھے بھی تھے. چلے نبی کے دیوانے مستانے سوچو. انہوں نے روزے کی حالت میں تلواریں اٹھا لی تھی. تلواریں آج میری قوم کا 25 سال کا نوجوان رمضان کے مہینے میں چوراہے پر کھڑے ہو کر گٹکا چباتا. غلط کہہ رہا ہوں میں جی. جب فون چاہیے تھا تو 10ویں میں جوان ہو گیا کہ اسکول جب تک نہیں جاؤں گا جب تک فون نہیں ملے گا. جب رمضان کا مہینہ آیا تو 25 سال کا جوان بچہ بن گیا. ابھی ہماری کیا تھا, ہم روزہ امی بھی کہہ رہی ہیں ابھی تو بچہ ہے, بابا بھی کہہ رہے ہیں ابھی تو بچہ ہے. اسلام کہہ رہا ہے 15 سال کا ہو جا تو روزہ نہیں رکھے گا تو اللہ جہنم میں ڈالے. روزے کی حالت میں تلواریں اٹھا لی تھی مدینہ کے بچوں نے, 80 سال کے بوڑھوں نے. چلے دیوانے مستانے کھڑے ہو گئے مکہ کی سرحد پر جا کر. تلواریں تو تھی نہیں, 8 تلواریں تھی, 8. 2 گھوڑے تھے, 2 ٹوٹی پھوٹی سریں تھی. آقا کریم نے دیکھا میرے دیوانے آ تو گئے ہیں مگر ان کے پاس تلواریں نہیں ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کھجور کے ڈنڈے پڑے تھے. آقا نے کھجور کے ڈنڈے اٹھا لیے. فرماتے ابو بکر یہ تمہارے لیے, ابو بکر یہ تمہارے لیے, عمر یہ ڈنڈا تمہارے لیے, عثمان یہ ڈنڈا تمہارے لیے, علی یہ ڈنڈا تمہارے لیے. نبی نے تمام لشکر میں ڈنڈے بانٹنے شروع کر دیے. کفار مکہ بولے, منافقین مکہ بولے, مکہ کے یہود بولے اے مسلمانوں پاگل ہو گئے ہو, لیس ہو گئے ہو. مسلمان دیوانے مستانوں کی طرح اپنے ڈنڈوں کو لہرانے لگے جیسے ان کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا نہیں بلکہ ایٹم بم آ گیا ہو. یہودی بولے مسلمانوں پاگل ہو گئے ہو, دیوانے ہو گئے ہو, لیس ہو گئے ہو. مذاق
बनाने लगे, हंसने लगे, तालियां पीटने लगे। मुसलमान बोले क्या हुआ? कहने लगे जंग तलवारों से लड़ी जाती है, तुम्हारे हाथ में खजूर के डंडे हैं। जंग लोहे से लड़ी जाती है, तुम्हारे हाथ में लकड़ियां हैं। तो जानते हो अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, ऐ मदीना के यहूदियों, तुम्हारी नजर तीर पर है, तुम्हारी नजर सिरे पर है, तुम्हारी नजर घोड़ों पर है, तुम्हारी नजर तलवार पर है। हमारा जितना भी भरोसा है मदीने वाली सरकार पर है। सुभान अल्लाह। फरमाया तुमने सिर्फ लकड़ी देखी, हमने मुस्तफा की उंगली देखी है जिसने चांद को दो टुकड़े कर दिया। सुभान अल्लाह। तुम्हें लकड़ी नजर आ रही है, हमने मुस्तफा के लब देखे हैं जिससे मुस्कुराकर जन्नती कहते हैं, अल्लाह उसे जन्नती बना देता है। सुभान अल्लाह। नबी के दीवाने मस्ताने चले। जब रोजा इफ्तार का वक्त आया तो मुस्तफा के सहाबा पे खाना नहीं था। खजूर के पत्तों को चूट कर सहाबा ने रोजा इफ्तार। 13 रमजान को चले थे मदीना से, 7वें रमजान को मदीना से 130 किलोमीटर दूर जाकर बदर के मैदान में खड़े हो गए। आका ने क्या देखा? सहाबा ने देखा कि कुफार ने अच्छी अच्छी जगह पहले ही कब्जा कर लिया है। और एक अजीब मंजर और था जंग बदर के मैदान में। मक्का के जितने लोग हिजरत करके गए थे, कुफार के लश्कर में किसी का चचा था, नबी के साथ भतीजा था, तो कुफार के साथ चचा था। नबी के साथ अबू बकर सिद्दीक थे। मक्का के लश्कर में अबू बकर के बेटे अब्दुल रहमान मौजूद थे। बेटा नबी के साथ था, बेटा अबू जहल के साथ था और बाप नबी के साथ था। जब सहाबा ने अपने रिश्तेदारों को देखा, अपने खानदान वालों को देखा, सहाबा का चेहरा तब्दील हो गया, रंग उड़ गया। आका करीम ने जब महसूस किया कि मेरे सहाबा टूट घबरा से रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, मेरे सरकार ने अपने सर को बदर के मैदान पर अल्लाह अल्लाह जमीन पर रख दिया था। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, हमने ऐसा ओपनली सजदा नबी का इससे पहले कभी नहीं देखा था। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, वक्त हो चुका है, 5 मिनट बाकी है तकरीर खत्म होने में, ये जुमले सुन लो, दिल की तख्ती पर लिख ले। मेरे सरकार ने ओपनली सजदा किया। अबू बकर फरमाते हैं, ऐसा ओपनली सजदा मैंने कभी नबी का देखा नहीं था। आका करीम के लब हिलने लगे, वो लब जिनके बारे में मेरा इमाम कहता है, पतली पतली गुले कुछ की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। नबी की आंखों से आंसू बहने लगे, वो आंखें जिसको कुरान ने कहा मा ज़ागल बसरु व मा तगा। आला हज़रत फरमाते हैं, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं लौट के आने वाले, हुस्न तेरा सना देखा न सुना, ऐसा कहते हैं अगले जमाने वाले। नबी की पेशानी खुदा के सामने सजदे में झुक गई और मेरे आका ने रोना शुरू कर दिया। मेरे आका दुआ करते जाते थे, सहाबा रोते जाते थे, नबी ज़ारो कतार रोते थे। आका फरमाते, मौला तू जानता था तेरे दीन की तबलीग के लिए मक्का वालों ने मुझे बड़ा सताया है। उन्होंने मेरी पुश्त पर ओझड़ी रखी, उन्होंने मेरे गले में रस्सी बांध कर खींच दिया करते थे। आका जब मैं मंडी में जाता था, ये जालिम मेरे पत्थर मांगते थे, इन्होंने मेरे सर को ठोक डाला था, इन्होंने मेरे सर को कुचल दिया था। ऐ परवरदिगारे आलम तू जानता है, जब मैं गलियों से गुजरता था ये मुझे गालियां देते थे, जब मैं तेरे दिन की तबलीग करता था ये जालिम मुझे ओल खोल बकते थे, ये मुझे दीवाना कहते थे, ये मजनू कहते थे। अल्लाह दे मेरे सहाबा में बिलाल मौजूद है जिसकी जबान को जला दिया गया था, खब्बाब मौजूद है जिसकी पुष्ट से कोयले बुझ जाते थे। ऐ परवरदिगारे आलम, इतनी तकलीफों के बाद, इतनी कुल्फतों के बाद, इतनी परेशानियों के बाद मैं ये 313 का लश्कर बदर के मैदान में तेरी रजा के लिए आया हूँ, तेरे दीन के लिए आया हूँ। अल्लाह देख मेरे सहाबा ने कुछ नहीं खाया है, ये रोजे की हालत में है, इनके पेट इनकी पुश्तों से लगे हुए हैं। ऐ परवरदिगार आलम, मैंने बड़ी मेहनत से तमाम जिंदगी की कमाई से इन 313 दीवानों को तैयार किया है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते, मौला अबू बकर मेरी तमाम जिंदगी की कमाई है, उस्मान मेरी तमाम जिंदगी की कमाई है, अल्लाह अकबर, उमर मेरी तमाम जिंदगी की कमाई है। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, अगर ये 313 लोग आज मिट गए तो कयामत तक कोई तेरा नाम लेने वाला जिंदा नहीं रहेगा। अल्लाह मेरे सहाबा पे मेहरबानी फरमा, अल्लाह मेरे सहाबा पे करम फरमा। मौला अली फरमाते हैं, बदर में हवाएं चलने लगी, नबी ने मुस्कुराकर सर को उठा लिया। अली पूछते हैं, आका ये क्या है? नबी फरमाते हैं, मेरा पहला वजीर जिब्रील अमीर 500 फरिश्तों की मदद लेके बदर में आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान
फरमाते नबी जिब्रील आ गया है, अकेला नहीं आया है, 500 फरिश्तों की मदद लेके आया है। अली फरमाते फिर हवाएं चलने लगी। मैंने पूछा आका अब क्या है? नबी फरमाते मेरा दूसरा वजीर मीकाईल बदर के मैदान में आ गया है, 500 फरिश्तों की मदद लेकर आया है। अल्लाह अल्लाह अगर अबू बकर सिद्दीक जैसा ईमान हो तो अल्लाह आसमान से फरिश्तों की मदद भेजता है, हमारे लिए क्यों भेजे? इसलिए कि हमारी कौम के बच्चे तो शराबी बन गए, हमारी कौम के बच्चे बदतमीज हो गए, हमारी कौम के बच्चे जुआरी बन गए। काश अबू बकर सिद्दीक के जैसा दिल होता, काश उमर के जैसी बहादुरी होती, काश अली के जैसा दिल होता, काश उस्मान के जैसी सखावत होती, तो आज दुनिया हमें चोट न कहती, दुनिया हमें शराबी न कहती, दुनिया हमें जुआरी न कहती, बल्कि दुनिया वो कहती जो अल्लामा इकबाल ने सैकड़ों साल पहले कहा था। अल्लामा इकबाल ने कहा था दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी तपते हुए अफ्रीका के सहराओं में, फिर मने कातिल को चलाया हमने, नौ इंसान को गुलामी से बचाया हमने। दस्त को दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बोलो बोलो दस्त को दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। सुभान अल्लाह। एक तरफ ईमान वाले थे, ईमान वाले, एक तरफ शैतान वाले थे, एक तरफ अबू जहल वाले थे, एक तरफ आमना के लाल वाले थे। नबी फरमाते चलो दीवाने चले मुस्तफा के, मस्ताने चले मुस्तफा के। उधर से मक्का वालों ने हमला किया। अल्लाह अल्लाह जब जंग तेज हो गई, जब जंग के शोले भड़क उठे, हज़रत उमर फरमाते हैं नबी ने हमको जो खजूर की लकड़ियां दी थी, आज उन लकड़ियों ने कमाल कर दिया था। लकड़ी उठती थी, सर काट देती थी, खजूर की डंडी उठती थी, बाजू काट देती थी, खजूर की लकड़ी उठती थी, जिस्म को दो टुकड़ों में बांट देती थी। हज़रत अली फरमाते हैं बदर के मैदान में मक्का के काफिर 70 लाशों को छोड़कर भागे, अकेले 35 अली ने कत्ल कर डाले थे। अल्लाह अकबर। जब कुफार वापस भागे तो इन्हीं में भाग रहा था उमैया। हज़रत बिलाल ने देख लिया। बिलाल कहते उमैया रुक जा रुक जा। बिलाल क्या कहते उमैया रुक जा, कल तेरा दौर था, आज बिलाल का दौर है। सुभान अल्लाह। कल तू ताकतवर था, आज बिलाल ताकतवर है। कल तुझ पे घोड़ा था, आज तू खाली हाथ है, दौड़ रहा है, बिलाल के हाथ में तलवार है। बिलाल फरमाते उमैया रुक जा। उमैया ने देखा, बिलाल को देखा डर गया, तेज दौड़ा, तेज भागा। उमैया मोटा था, कितना भागता। हज़रत बिलाल ने उसको जा पकड़ा। अल्लाह अकबर। हज़रत बिलाल ने जा पकड़ा, आओ पीछे चले। जब उमैया बिलाल को मारता था ना, बिलाल यूं देखते थे तो उमैया बिलाल के चेहरे पे मुक्के मारता था, बिलाल के चेहरे पे घूंसे मारता था और कहता था बिलाल ये मेरा मुक्का है जो तेरे दिन इस्लाम के चेहरे पर पड़ा है। आज जब बिलाल को उमैया मिला, हज़रत बिलाल ने जोश ईमानी में, हज़रत बिलाल ने जोश ईमानी में उमैया के चेहरे पे मुक्का मारा। मुक्का उमैया नीचे को गिरा, यूं देखता है। बिलाल कहते हैं अबे देखता क्या है, ये बिलाल का मुक्का थोड़ी है, ये इस्लाम का मुक्का है जो कुफ्र के चेहरे पे पड़ गया। सुभान अल्लाह। बिलाल फरमाते कल तेरा दौर था, आज बिलाल का दौर है। देख मुस्तफा ने हमको कितनी अज़मतें अता फरमा दी है। देख मुस्तफा ने हमको बदर का फाते बना दिया है। देख तू काफिर है, काफिर, हम ईमान वाले हैं, तू ज़लील है, हम इज्जत वाले हैं। जो अबू जहल कहता था मिटा देंगे, जो उमैया कहता था मिटा देंगे। सहाबा ने उनके सिरों को इकट्ठा किया, सर कहीं पड़ा था, पैर कहीं पड़े थे, हाथ कहीं पड़े थे। जिल्लत के साथ सबको इकट्ठा किया जाता, लानतें भेजी जाती, एक गड्ढे में डाल दिया जाता। उमैया को फेंक दिया गया, अबू जहल को फेंक दिया गया, अबू लहब को फेंक दिया गया। नबी ने फरमाया देख ले अबू जहल तू जलील हो गया, आमना का लाल वो ज्यादा इज्जतदार हो गया। सुभान अल्लाह। साहबा कहने लगे हुजूर ये सुन रहे हैं? तो नबी फरमाते ये हमसे भी डबल सुन रहे हैं। आका फरमाते मुर्दा जिंदे से डबल सुनता है। आका फरमाते अल्लाह तूने अपने वादे को सच कर दिखाया। मौला मेहनतें हमारी हैं मगर ये फतेह तेरी है, मेहनतें हमारी हैं मगर कामयाबी तूने दी है।
تو پتہ چلا مومنوں جو نبی پہ نثار ہو جاتے ہیں اللہ ان کو بلندیاں عطا فرماتا ہے، جو نبی کے ہو جاتے ہیں اللہ انہیں ترقیاں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میرا امام کہتا ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، ذکر ان کا سناتے جائیں گے، ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے محبوب یاد کرو جب مکہ والے تمہیں قید کرنے کی تدبیر کر رہے تھے، مکہ سے بدر کرنے کی تدبیر کر رہے تھے، تمہیں قتل کر ڈالنا چاہتے تھے، وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے، اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ کون ہے جو اللہ سے بہتر تدبیر کرنے والا ہو؟ مولا اس کے رسول عطا فرمائے، اس کے صحابہ عطا فرمائے، ہمیں ہماری نسلوں کو نبی کی آمد پر خوب چراغا کرنے، ان کا ذکر سجانے۔ کلمہ شریف پڑھ لیجیے، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرات اعلان سن لیں، حضرت کی جانب سے اعلان کرایا جا رہا ہے۔